کے حالات ہیں، جو انٹالرنس کی ایک فضا چاروں طرف گرم کی جا رہی ہے، اس سے بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی چبدی اور چبدی کے شوربے پچھلے 1400 سال سے لے کے آج تک اسلام اور بانی اسلام کے تعلق سے کہتے رہے۔ کبھی تو انہیں لوگوں نے جواب دیا، کبھی حالات نے جواب دیا، کبھی اس دور کی حکومتوں نے جواب دیا، کبھی علماء اور عوام نے جواب دیا۔ جواب ملتا رہے گا۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہ جو نرسنگھانند نے گستاخی کی ہے، ظاہر سی بات ہے اتنا کھل کر کے سوشل میڈیا کے تھرو اپنی بات کو پھیلا رہا ہے، اور چاروں طرف سے اس کی گرفتاریوں کا مطالبہ بھی ہو رہا ہے۔ ہر چہار جانب سے اس کے خلاف FIR بھی داخل ہو رہی، لیکن ابھی تک اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہو سکی ہے۔ حکومت بھی اپنے تمام اہلکاروں کے ساتھ ساتھ ایسا خاموش اور تماشا بھی بنی بیٹھی ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے اشارے پہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہم ہندوستان کے واسی ہیں، وی دا پیپل آف انڈیا۔ ہمارا جو سمویدھان ہے، جس کی بنیاد پر یہ اتنا بڑا ملک اپنی مکمل گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس سمویدھان کو جب بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا اور ان کے ساتھیوں نے جب اسے تیار کیا، تو سب کے ذہن میں ایک بات تھی کہ یہ وہ دیش ہے جس میں جو بہو سنکھیک ہیں وہ ریتی رواج اور پرمپرا کو فالو کرتے ہیں، آستھاؤں اور شردھاؤں کے پیچھے چلتے ہیں۔ کوئی دھارمک سٹرکچر جو ہے وہ اس پرمپرا کا نہیں ہے، جس کو سپریم کورٹ نے بھی کوٹ کیا، لیکن یہ لوگ کرونا اور دیا اور محبت پر بیلیو کرتے ہیں۔ اسی لیے اس کا ایک سیکولر ڈھانچہ تیار کیا گیا، کیونکہ یہاں ایک کثیر تعداد میں مسلمان بھی، ایک اچھی وافر تعداد میں جین اور سکھ بھی، یہاں عیسائی بھی یہاں رہتے ہیں۔ لیکن آج ایسے ہی تتو، یہ نرسنگھانند یا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں، وہ اس طرح کا بیان دے کر کے ہندوستان کے اس سمویدھان کی گریما کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ ملک ہے جسے نفرتوں نے نہ کبھی چلایا ہے اور نہ چلا سکے گا۔ انگریزوں نے ہمیں جس غلامی کی زنجیر میں جکڑا تھا، جب اس جکڑن سے ہم نکلے تو ہم نے اس وقت یہ طے کیا تھا کہ ہم اس ملک کی ایکتا اور اکھنڈتا کی رکشا کریں گے۔ لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کبھی کہیں الیکشن ہوتا ہے تو کچھ اس ٹائپ کے پپیٹ جو ہیں وہ بولنے لگتے ہیں اور شان رسالت میں گستاخیوں کا بازار گرم کرنے لگتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف پورولائز کر کے بھولے بھالے اور مورخ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کا دھرویکرن کیا جائے۔ آپ یاد رکھیے گا میری اس بات کو کہ 2 مئی کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی قانونی کارروائی ہو جائے اس کے خلاف، لیکن 2 مئی سے پہلے مجھے آثار نہیں لگ رہے ہیں۔ ابھی دیش کے کئی راجیوں میں چناؤ ہے، اور زیادہ تر ان راجیوں میں چناؤ ہے جہاں مسلم لوگوں کا ایک اچھا اثر ہے۔ تو اس طرح کی شعبدہ بازی ہوتی رہے گی۔ آپ لوگ دھیریہ سے کام لیں، ٹالرنس سے کام لیں، صبر سے کام لیں۔ اس وقت ہمارا صرف ملک نہیں بلکہ پوری دنیا اس ویشوک مہاماری کے دور سے گزر رہی ہے، اور اس کا جو دوسرا ویو آیا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہوگا تو جیسے ہی 1 لاکھ تک پر ڈے کا یہ ڈیٹا آنے لگا، لوگ گھبرا گئے تھے۔ 3 ہفتے کا لگایا گیا لاک ڈاؤن کئی مہینوں پہ مشتمل ہو گیا۔ ابھی تو رپورٹ یہ ہے کہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ یہ ڈیلی آ رہے ہیں۔ ملک بھی اس استھتی میں نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن لگا کر کے ہم اقتصادی
सूरत हाल से दो चार हों। इसलिए हमें भी इस जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए। हम अपने तई जो भी हमारे एसेंशियल एसेट्स हैं, जो भी हमारी ज़रूरियात हैं, विच वी हैव टू गेट इट, जिसको हमें लेना ही लेना है, हम सिर्फ उसी के लिए बाहर निकलें। अपनी बुनियादी ज़रूरतों के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें और याद रखें, अल्लाह पाक का इरशाद है, ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ज़मीन व आसमान पे बहरो बर में फसाद और फितने बर्पा हो गए उन करतूतों की वजह से जो उन्होंने किए, ताकि हम मज़ा चखाएं उनको जिन्होंने ऐसा अमल किया। याद रखें, ये सब हमारी करतूतों का नतीजा है। हम आए थे इस दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने मौक़िफ़ से, अपने गोल से, अपने हदफ से दूर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि नरसिंहानंद और इन जैसे बहुत सारे लोग, जिनकी यह औकात भी नहीं है कि वो अपना मुंह धो करके मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का नाम ले सकें, वो सीना तान के आज बदतमीजी कर रहे हैं, क्योंकि हम कमज़ोर हैं। मैं हिंसा का बहुत सख्त मुखालिफ हूँ। आई डोंट बिलीव अपॉन वायलेंस एट ऑल। वी बिलोंग टू द सूफी बैकग्राउंड, बट एट द अदर हैंड we have to think about ourselves, what we are doing right now. मैं जानता हूँ कि बहुत सारे अहबाब हमारे इंग्लैंड से, कनाडा से, साउथ अफ्रीका से भी कनेक्ट हुए हैं अभी, तो मैं बीच बीच में कुछ इंग्लिश भी बोल दूँ ताकि उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए। This is the time. It's going to be a examination time for all of us, especially for Muslim Ummah. एक सख्त इम्तिहान की घड़ी से हम लोग गुजर रहे हैं। एक तरफ ये कोरोना की, कोविड-19 की आलमगीर वबा है, जिसने सबको अपने सीने में जकड़ रखा है। एक तरफ फितनों फसाद चाहे और मुसलमान ताकतें मुनज़्ज़म होकर हमारे खिलाफ खड़ी हैं, और एक तरफ ये भी सूरत हाल है कि हम कहीं ना कहीं एहसासे कमतरी के शिकार होकर फिक्रमंदी के समंदर में गोते डालने पे मजबूर हो रहे हैं। अजीज़ान मुकर्रम, कुछ शायद कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, अजीज़ान मुकर्रम, आप लोग इस चीज़ को हमेशा जहन में रखें कि अल्लाह ताला ने हमें खैर उम्मत बनाया है। इस पूरी कम्युनिटी को बेहतरीन उम्मत कहा है, तो हमें अच्छा उम्मती बन के दिखाना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारी पहचान ऐसी होनी चाहिए कि मुसलमान वो है जो किसी भी हालत में अपने रब की शान में, अपने मुस्तफ़ा की शान में कोई गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वो दौर नहीं है कि हम सिर्फ 2-4 पोस्ट लिख दें तो काम चल जाए, 2-4 FIR कर दें तो काम चल जाए। हम उन्हें अपने अमली किरदार से ये दिखाएं कि जैसा तुम बोल रहे हो वैसा तो उम्मती नहीं है, चे जाए कि उसका नबी हो। अजीज़ान मुकर्रम, ये हमारी अपनी करतूतें हैं जिसकी वजह से हमें ये कड़वा फल खाने को मिल रहा है। हमें कोई हक नहीं बनता ये कहने का कि फुला हम पे मुसल्लत है, फुला हम पे मुसल्लत है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक शख्स आया और उसने कहा कि हुजूर, ये हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम और सफ़ाक ऐसा शख्स हमारा हाकिम है, हम पर हुकूमत कर रहा, क्या अल्लाह नहीं देख रहा? तो जनाबे ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मा जाअल हज्जाजु इल्ला बिदुनूबिना, यकीनन हज्जाज बिन यूसुफ नहीं आया मगर हमारे गुनाहों की वजह से। तो ये जो कुछ भी है ये कहीं ना कहीं हमारे गुनाहों की वजह से है, हमारी करतूतों की वजह से है। Because we have done lot of sins and evils, lot of bad deeds in our account. That's why Allah subhanahu wa ta'ala keep bringing
his the examination, ये अपने इम्तिहानात के ज़रिए, इन वबाओं के ज़रिए वो हमारा इम्तिहान ले रहा है। हमें साबित कदमी की ज़रूरत है, इस्तिकामत की ज़रूरत है। याद रखें 2-3 दिन के बाद माह रमज़ानुल करीम शुरू हो रहा है, और वो भी इन ऐसी सूरत हाल में कि जहां हुफ़ाज़ ये भी नहीं अभी तक जान सके हैं कि उन्हें तरावीह कहाँ पढ़ाना है। अभी जो नाइट कर्फ्यू की सिचुएशन बनी है, उसमें हम अपने घरों से निकल के मस्जिद में जाके तरावीह कैसे पढ़ें, ये एक सवालिया निशान बना हुआ है। लेकिन इन एनी सर्कमस्टांसेस, व्हाटएवर द थिंग्स विल कम, वी हैव टू फेस इट। हमें उसे फेस करना है, हमें उसका सामना करना है, और कमाल सब्र और इस्तिकामत के साथ ये बावर कराना है पूरी दुनिया को कि हम अल्लाह के लिए इस दुनिया में आए हैं, उसी के लिए जाएंगे। हमारा आना उसी की इच्छा से है, हमारा जाना उसी की इच्छा से है, तो इंशाअल्लाह हमारा इस दुनिया में रहना भी उसी की इच्छा से होगा। अब अगर कोई पोलराइजेशन करते हुए मुल्क की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो याद रहे, और पूरी तरह से याद रहे, कि फिर हमें जो भी कानूनी कार्रवाई हमसे मुमकिन होगी, हम इस देश के संविधान के अंतर्गत उसे करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तहरीकों ने, तंजीमों ने इस राह में कदम आगे बढ़ाया है, पेशकदमी की है। मेरी अशरफी चिश्ती फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने एक मुकम्मल तौर पे एक मुसव्वदा तैयार किया है, गुजराती ज़बान में भी इसे टाइप किया है और हिंदी ज़बान में भी, जिसे कल कलेक्टर को भी और इंशाअल्लाह ताला लोकल थाने को भी दे दिया जाएगा। ये उसका पूरा ड्राफ्ट है जिसे आप देख सकते हैं। ये इंशाअल्लाह ताला कल तक अशरफी चिश्ती फाउंडेशन के बैनर तले पेश कर दिया जाएगा। ये तकरीबन 3 सफ़हात पर है। ये जितने भी लोग हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, माज़अल्लाह उनके किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नबी पाक जो सर्व महान और सर्वप्रथम है तख्लीक में, वो हुजूर जिनका जिक्र ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, श्याम वेद में भी है, वो नबी जिनका इंतज़ार बनी इसराइल ने किया, जिनका इंतज़ार कौम मूसा ने किया, जिनका इंतज़ार कौम ईसा ने किया, और अगर प्राचीन दौर में देखा जाए तो मनु के ज़माने से जिसकी आमद का इंतज़ार सब करते रहे, जिनके बारे में सबको पता था कि वो ऐसे संपूर्ण जगत के लिए उनको भेजा जाएगा जो सिर्फ एक हल्के के लिए नहीं, एक इलाके के लिए नहीं, एक रीजन के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण पूरी कायनात के लिए वो रसूल बरहक बन के आएंगे, जिनके बारे में ये अच्छी तरह जानते हैं, यहूदी भी जानते हैं, ईसाई भी जानते हैं, हुनूद भी जानते हैं कि वही वो महान शक्ति है जो मक्के की धरती पे जिसने जन्म लिया, अबू तालिब की उंगली पकड़ पकड़ के जिसने चलना सीखा, जो आमिना का बेटा है, अब्दुल्ला का लाल है, हसन हुसैन का नाना है, उस नबी के सिवा कोई नहीं है। फिर भी ये बेहूदगी पे आमादा है। इन सब लोगों को जवाब देने के लिए अशरफी चिश्ती फाउंडेशन ने भेड़ा उठाया है। हमें आप सब के ताउन की ज़रूरत है। इसका मकसद सिर्फ एक है कि भारत की एकता और अखंडता को जो लोग खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें यह बताया जाए कि ये हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहाँ जितना अधिकार तुम्हारा है उतना अधिकार हमारा भी है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर गरीब नवाज के इस हिंदुस्तान में अमन, शांति और मोहब्बत के साथ और भाईचारे के साथ रहने की और जीने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज़ ये बतानी थी कि अशरफी चिश्ती फाउंडेशन ने एक अहम ऐलान ये भी किया है, और आज ही उस सिलसिले में मीटिंग तय हुई है, कल एक मीटिंग और होगी, कि पिछले साल हमने एक कसीर मिक़दार में मुस्तहिक़ीन को जो है वो हमने किट्स वगैरह दी थी। हमारे बहुत सारे अहबाब जो अशरफी चिश्ती फाउंडेशन का ताउन करते हैं, उनके ताउन से हमने ये काम किया था। इस साल और इंशाअल्लाह ताला हौसले के साथ हमारी टीम उन किटों को मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने का काम शुरू करने वाली है। इंशाअल्लाह पहले रमज़ान से पहले पहले अल्लाह ने चाहा तो हम अपने टारगेट तक पहुँच जाएंगे, और उस टारगेट पे पहुँच के बहुत तेज़ी के साथ मौला करीम के फजल उसके करम से
इंशाअल्लाह ताला गांव गांव में हमने वो लिस्टें बनाने का काम चल रहा है। हमने उसके लिए एक छोटी छोटी टीम भी बनाई है जो अपने अपने हलके में गुरबा और मसाकिन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि उन्हें यहाँ ना आना पड़े, उनके घर तक उनका गल्ला, वो तमाम एसेंशियल थिंग्स जो घर के लिए ज़रूरी है, बिलखुसूस रमज़ान में रोज़े और सहरी और इफ्तार के लिए ज़रूरी है, उन सब का मजमूआ 15 दिन की शक्ल में, बाज़ को 1 महीने की शक्ल में पेश कर दिया जाए, ताकि उनकी गैरत व हमीयत को भी चोट ना पहुँचे। उनके साथ कोई फ़ोटो भी नहीं खिंचाएगा कि ये हम उनको दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वो किटें जब तैयार हो जाएंगी तो और भी जो लोग बहुत सारे हैं वो हमारे अशरफी चिश्ती फाउंडेशन अहमदाबाद के कारकुनान से राब्ता डायरेक्ट कायम कर सकते हैं। जूहापुरा में इसका ऑफिस है। जहाँ तक हो सकेगा हत्तल मकदूर हम उन तक पूरे रमज़ान की किट उन तक पहुँचा देंगे। काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम तंजीमें और तहरीकें जो एक वक्त या 2 वक्त के खाने का ख्याल नहीं बल्कि पूरे पूरे महीने का खाने का ख्याल, उनके सहरी और इफ्तार का ख्याल करते हुए किटें बांट रही हैं। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अशरफी चिश्ती फाउंडेशन ने भी इस राह में पेश कदमी की है। आप हजरात दुआ करें कि अल्लाह ताला दस्ते गैब से हमारी मदद करे और इस इंतहाई मुश्किल और इंतहाई पुराशोभ दौर में, गम में डूबे दौर में, हलाकतों के दौर में हम सही खिदमत खल्क़ खुदा की कर सकें। याद रखें, खिदमत खल्क़ जो बहुत अजीम सरमाया है। अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप बढ़ चढ़ कर इस सिलसिले में हिस्सा लें, और इस तरह से हिस्सा लें कि अगर दाहिने हाथ से किसी को कुछ दें तो बाएं हाथ को भी खबर ना होने पाए। यही अल्लाह को भी पसंद है, उसके रसूल को भी पसंद है। तो इंशाअल्लाह ताला तारीख़ और वक्त जहन में रखिएगा। हर जुमेरात और हर मंडे, यानी हर थर्सडे और हर मंडे को हफ्ते में 2 दिन इंशाअल्लाह ताला मैं बाज़ाब्ता किसी न किसी एक उन्वान और किसी एक ख़ास टॉपिक पर आपसे मुखातब होता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने मुझे सलाम किया, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और महफूज रहिए, डिस्टेंस बना के रहिए। हो सके जितना हो सके बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलिए, हाथ को धोते रहें, अपनी सेहत का ख्याल करते रहें। इरशाद रब्बानी है, ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हलाकत में मत डालो। तो जान बचाना मेरे दोस्तों फ़र्ज़ आइन है, इसकी हिफाजत करें। मौला करीम हम सबको ये पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।